हाँ, जब वो मरसिया शुरू होगा तब करते हैं। शूटिंग हो रही ये बात संज्ञा से आ रहे ना कर रहे मगर पढ़ने वाले इंतजार करते देखा है ना आपने ऐप देखा नहीं देखा ठंडी हवा चाहिए इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमतु अन्नहा क़ालत दख़ल अली अबी रसूलुल्लाह फ़ी बाज़िल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतु फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ु बिल्लाहि या अबतअ मिनज़्ज़ौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु अतीनी बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैनी बिही फ़अतैतुहु बिल्किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलअ लहु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बुरिज़ अल-हसन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैकी या उम्मह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रतु ऐनी व समरतु फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्मह इन्नी अशम्मु इंदक रायतन तय्यबतन कअन्नहा रायतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्न जद्दका तहतल किसाए
فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووسي وخليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. تحت الكساء فزع بي رسول الله بطرف الكساء وعمر بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم ودم لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبريل يا رب أتأذن إن أحببت أن أكون معهم سادسا وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأ السلام ويحسك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية
वला अर्ज़न मदहियतन वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़ियतन वला फ़ल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम वक़द अज़न ली अन अदख़ुल मअकुम फ़हल तअज़नु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम या अमीन वहियल्लाह इन्नहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्रील माना तहतल किसाए फ़क़ाल लबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। क़ाल अली लबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहतल किसाए मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाह फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमीउन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमत व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहु फ़ुज़ना व फ़ाज़ शिय्यतुना बिल काबा। क़ाल अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि या अली वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ नबिय्या वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नजिय्या मा ज़ुकिर ख़बरना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ीहि जमीउन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्मह वला महमूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्मह वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ियल्लाहु हाजतहु क़ाल अल्लाहु अलियुन अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहु फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सुइदु फ़िद दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। तमाम शुहदा और मरहूमीन और साहिब खाना के मरहूमीन के लिए फातिहा। सीट की जगह भी बहुत जवाब मोहम्मद नबीज़ादियों का शाम में जाना सजाद से पूछो अफ़सोस नबीज़ादियों का शाम में जाना सजाद से पूछो सर खुले सर
सजाद से पूछो अफसोस सर हजरते मुस्लिम का लटकता था जहाँ पर वहाँ शिकारों का सर हजरते मुस्लिम का लटकता था जहाँ पर वहाँ शिकारों का दुर्सितम जात का उस वक्त लगाना सजाद से पूछो अफसोस दुर छीने सकीना के तमाचे भी लगाए किस जुल्म जफा से दुर छीने सकीना के तमाचे भी लगाए किस जुल्म जफा से गुर्बत में सितमगारों का सकीना को सताना सजाद से पूछो अफसोस थी एक रसन असीरों के गले सब चुप के खड़े थी एक रसन असीरों के गले थे सब चुप के खड़े थे रस्सी में बंधे
ज़ैनबो कुलसूम का सजाद से पूछो अफसोस बैठे हुए सब कुर्सियों पर छोटे बड़े थे सादात खड़े बैठे हुए सब कुर्सियों पर छोटे बड़े थे सादात खड़े थे सरतश्त मेरा ज़रा तो दिखाना सजाद से पूछो अफसोस छुपती थी नबी ज़ादी नबी ज़ादी के पीछे किस शर्म छुपती थी नबी ज़ादी नबी ज़ादी के पीछे किस शर्म हया से और शिर का छुपती थी नबी ज़ादी नबी ज़ादी के पीछे किस शर्म हया से और शिर का बीबियों के नाम बताना सजाद से पूछो बज़्म-ए ज़ालिम में है शोर बरपा बेड़ियां पहने आते हैं आबिद बज़्म-ए ज़ालिम में है शोर बरपा बेड़ियां पहने आते हैं आबिद सर खुले
साथ है सारा कुनबा, बेड़िया पहने आते हैं आबिद, मार के हुक्म देता है जालिम, मुंतज़र है चलो जल्द हाकिम, मार के हुक्म देता है जालिम, मुंतज़र है चलो जल्द हाकिम, दस्ते शिमरे लड़ी में है घोड़ा, दस्ते शिमरे लड़ी में है घोड़ा, बेड़िया पहने आते हैं आबिद, है गले में पड़ा तो के आहने, है गले में पड़ा तो के आहने, अरे बोझ से उठ नहीं सकती गर्दन, बोझ से उठ नहीं सकती गर्दन, ज़ौफ़ से डगमगाते हैं हर जा, ज़ौफ़ से डगमगाते हैं हर जा, बेड़िया पहने आते हैं आबिद, हुक्म है ये यज़ीद शफ़ी का, सब रहे जम्मा बहरे तमाशा, अरे हुक्म है ये यज़ीद शफ़ी का, सब रहे जम्मा बहरे तमाशा, काफ़िला आएगा कैदियों का, काफ़िला आएगा कैदियों का, बेड़िया पहने आते हैं आबिद, आगे सर बाप का और पीछे, आगे सर बाप का और पीछे, अरे हाथ बाली सकीना का थामे, हाथ बाली सकीना का थामे, मुँह से कहते हुए मुझसे कहते हुए बाहुसैला, बेड़िया पहने आते हैं आबिद, आए जब या मोहम्मद का कुनबा, बैठने की इजाज़त न देना, आए जब या मोहम्मद का कुनबा, बैठने की इजाज़त न देना,
सुबह नुमाया है शाम में कुन बाशफिए हश्र का है इज्तिहाम में सरनागे फातिमा है एहतिमाम में आसाने रुजलाल बलवाया आसाने रुजलाल बलवाया जिब्रील की खुदा दिया तशरीफ लाई है मुश्किल कुशा की बेटियां बंदी में आ मुश्किल कुशा की बेटियां बंदी में आ मुश्किल कुशा की बेटियां बंदी में आ हैं बीच में खुले हुए आले अबा के साथ नेज़ों पे उनके गिर्द हैं फौजे खुदा के साथ बच्चों के साथ बुजुर्गों के साथ अक़रबा के साथ रोते हैं बारिशों के सरों को दिखा रोते हैं बारिशों के सरों को दिखा के साथ सर रख के ज़ानुओं पर जो वारिस को रोते हैं जालिम घरों में न जोगिनों के चुबा जालिम घरों में न जोगिनों के चुबा जालिम घरों में न जोगिनों के चुबा नेज़े पहुर मुला के चमकता है खिला बिखरे हुए हैं चांद से मुंह पर झगोले बात औलाद वाले कहते हैं ऐ रब्बे जुल जलाल बेजमा के कौर का किसने लिया इस बेजमा के कौर का किसने लिया गर्दिश में हाय हाय ये किसका सितारा है लेकर बलाए गज के मारो अमा लेकर बलाए गज के मारो अमा लेकर बलाए गज के मारो अमा बोले सब एक बार वो आए गुनाहगार अरे आए कसूरवारो आए गुनाहगार जल्लादो होशियार वो आए गुनाहगार वो आए बेदयार वो आए गुनाह वो आए बेदयार वो आए गुनाह जब से के आसमान खुदा ने बनाए हैं आले रसूल आज बंदी में आ 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 पहुंचे मुराद को सफर अपना तमाम है उतरो असीरो उतरो अदब का मकाम है आगे तो आस्ताने सुल्तान शाम है देखो तो क्या जलाल क्या इंतजार देखो तो क्या जलाल क्या इंतजार इसकी बिला में अर्श को हमने हिला दिया घर पर जगह बाग में बिल्कुल मिला घर पर जगह बाग में बिल्कुल मिला घर पर जगह बाग में बिल्कुल मिला सीने में दाम मदीना समाए थे है गजल
है ज़ैनब का यारी सर खुला, यारी सर खुला, यारी सर खुला। कुर्सियों पर है सब तमाशाई और कुंभा खड़ा, और कुंभा खड़ा, मधल बदे पैगंबर की शाम में गेसू खुले हुए हैं अज़ाइमा में, सर पीटी है फातिमा दारुस्सलाम में। ज़ैनब ये ज़ैनब ये ज़ैनब ये लोगों खबर करो मेरे नाना रसूल को, बल्बे में सिमर लाया बिते बतौर, बल्बे में सिमर लाया बिते बतौर। नाना तेरी नवासी के सर पर रिदा नहीं, और अहले शाम देखते हैं कुछ हया नहीं। आबिद गरीब मरता है तब से दवा नहीं, बेहोश बच्चे आमो मिला, बच्चे आमो मिला, बच्चे आमो मिला। दिल सबके कांपते हैं, बदन थराते हैं, सामने यजीद के साथ आजा, सामने यजीद के साथ आजा, सामने यजीद के साथ आजा। कसम में 12 गलेवा मुझे, कसम में 12 गलेवा मुझे, कसम में 12 गलेवा मुझे। रोते गोदियों के बलेवा मुझे, रोते हैं, गोदियों के बलेवा मुझे। बस में सितम करोगे चले वा मुसीबत आके अज़ान को बलेवा मुझे, अज़ान को बलेवा मुझे। मुश्किल कदम उठाना था जिजदिया में, अरे यूं इतरत नबी गई बलवाया में। ज़ैनब तड़प के उठा करती थी ये बयान, दरबार में तलब हुए सादात लागा, ऊँटों से उतरी बीबियां कह कह के अल्लामा, पेशे यजीद ले गए जालिम नशा, पेशे यजीद ले गए जालिम नशा, पेशे यजीद ले गए जालिम नशा। कशा सामाने जश्न आम था, दरबार आम था, और जगे सर हुसैन का गुनबा जमा, नंगे सर हुसैन का गुनबा जमा, नंगे सर हुसैन का गुनबा जमा। लागा बढ़ के शुमरे लईने किया सलाम, बोला कि ऐ अमीर ये शादी का है मकाम, उम्मीदवार खिल्लतो जागीर है गुलाम। हाजिर से
तूने इसे निशाना किया तेरे जुल्म का, बच्चे का भी ना खाया तरस तूने बेहया। ये नका सागलाओ तेरा नाव के, सागलाओ तेरा नाव के जबा बदला तू किस पल का ये मेरे मुनीरा। बाना पुकारी बन के मेरा सके, पुकारी बन के मेरा सके, पुकारी बन के मेरा सके। मेरा खड़े थे सब हरमे शाहे मशरक़, अरे मोहरे सुकूत लपाना शिकवाना शोर शहर। ज़ैनब ने देखा तख्त का नागा सरे हुसैन, करने लगे, करने लगे, करने लगे। ना मौत आई मुझे राह शाम में, भैया मेरा सलाम दरबार आया, मेरा सलाम दरबार आया, मेरा सलाम दरबार आया। सलामी लैला क्या क्या जफा की लशा की हुयाल। तमाशाई कहते थे कूफे में हंसा, ये सरनंगे सरनब है, ये सरनंगे सरनब है। खुदा खुदा की उठा जब महफिल यदीद में दाखिल हराम हुए, गश आया कदम पाए जुल्मों से तब हुए।
अजीजों हादसे नौ फलक दिखाता है, धर्म का कुनबा पेशे यजीद जाता है। अज़ादारान हुसैन, तज़किरा उस मुसीबत का है कि जिस मुसीबत को याद करके सज्जाद मदीने में खून के आंसू रोते। इब्तिदाए मसाइब में आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त करता हूँ, रोने में बुखल ना करना, इसलिए कि मुसीबत ही इतनी बड़ी है कि जिस बीवी की माँ का जनाजा रात की तारीकी में उठा हो वो बने ना सर। अज़ादारों, इस मजलिस की एक खुसूसियत है कि जब भी ये मजलिस बर्पा होती है, बानियान की तरफ से एक एहतमाम ये किया जाता है कि इस मजलिस में आने वाले अज़ादारों के बाजुओं में रसद बांधी जाती है। लेकिन जब बानियान अज़ादारों के बाजुओं में रसद बांधते हैं तो एहसास ये होता है कि रसन कहीं ज्यादा तंग ना हो ताकि अज़ादार को कोई ज़ौक़ ना हो। अल्लाह जाने ये रसन उसी रसन की शबी है कि जिस रसन के निशान ज़ैनब बहरे सौगात मदीना लेके गए। एक वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करूं और फिर मैं अपनी मंजिल को आऊं। खुदा हम सबको शाम की जियारत नसीब करे। एक हिंदुस्तान के जाकिर जब शाम गए हैं जियारत करने के लिए तो मुख्तलिफ मकामात की जब जियारत करते जाते तो वहां के रहने वाले उनको पकड़ते और कहते चलाओ मैं तुम्हें वो बाजार दिखाऊं जहां से अली की बेटी को ले जाया गया। कोई एक बाजार लेके जाता, वो आलिम बड़ा तड़प के रोते, हाय यही वो बाजार था जहां मेरी शहजादी आई थी। कोई जब दूसरी जगह दूसरे बाजार में जाते तो कोई कहता ये वो बाजार है जहां से अली की बेटी आई। आलिम कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो बाजार कौन सा था जिन बाजारों से मेरी शहजादी को ले जाया गया, क्योंकि मैंने 6 बाजारों की जियारत की थी और हर बाजार में रहने वाले यही कहते कि यही वो बाजार है। ये बड़ी कश्मकश में थे कि ये शहजादी ज़ैनब के रोजे की जियारत करने आए। वो जब दाखिल हो रहे थे रोजे में तो उन्होंने देखा कि एक आलिम दीन रोजे के बाहर खड़े हैं और इबादत कर रहे हैं। एक दिल की ताकत ने कहा से इनसे सवाल करो। ये आलिम के पास आए, सलाम किया, आलिम ने जवाब सलाम दिया। इन्होंने कहा कि देखिए मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं एक जाकिर हूँ, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है जिसके लिए मैं बड़ा परेशान हूँ। कहा सवाल बता। कहा कि मैं उस बाजार को ढूंढ रहा हूँ जहाँ से अली की बेटियों को ले जाया गया। मैं 6 बाजार हो आया लेकिन वो मुझे बाजार कहीं नहीं मिला। बस ये सुनना था। आलिम दीन रोने लगे। उनके हाथ में किताब थी, वो किताब उस जाकिर को थी। फिर ज़ैजादी के गुंबद की तरफ अपने दोनों हाथों को बुलंद करके कहा कि बीबी मुझे माफ कर दीजिएगा, ना ये शख्स सवाल करता ना मैं इसका जवाब दे रहा होता। फिर उस जाकिर की तरफ मुतवज्जे होके कहते हैं कि देखो कोई ऐसी शाम की गली नहीं बची जहां से इन मलूनों ने अली की बेटी को गुजारा ना। ये जाकिर बड़ा करता। इसने कहा कि देखिए मौलाना आका, हमने तो रिवायत में सिर्फ एक ही बाजार सुना है, एक ही शाम का बाजार सुना है। ये रोने लगे। इन्होंने रोके कहा कि देखो बात तो तुम्हारी सही है, बाजार तो एक ही था। मरकजी बाजार से इन जालिमों ने तय किया था कि शहजादियों को ले जाया जाए, लेकिन रिवायतें कहती हैं कि जब ये काफिला इधर से जाने लगा तो मजमा इतना ज्यादा हो गया था कि रिवायतें कहती है उस दिन शाम में ईद का माहौल था। उस बाजार में कई मलाइन शराब पी के झूम रहे थे, कुछ मलाइन ढोल बजा रहे थे, कुछ मलाइन शहजादियों के सामने रक्स कर
बाजार का माहौल इतना खराब हो गया कि शाम की आवारा और बदनसीब औरतों को हया आने लगे। उन्होंने पर्दा कर लिया। फिर उन औरतों ने यजीद को खत लिखा और खत में ये कहा कि ऐ यजीद, शाम के बाजार का माहौल बहुत खराब हो चुका है। अगर तुझे इन कैदियों का तमाशा दिखाने का इतना ही शौक है तो इन कैदियों को हमारे मोहल्ले से गुजार। रिवायतें कहती है जब इन बीबियों को उस मोहल्ले से गुजारा गया तो कोई बदबख्त औरत बीबियों पर पत्थर फेंकती, कोई बदबख्त औरत बीबियों पर खौलता हुआ पानी फेंकती, कोई बदबख्त औरत गरम अंगारे ज़ैनब के सर पर। रिवायतें कहती है कि शाम के एक मुहर्रम से जब काफिले को ले जाया जा रहा था तो उस मजमे में एक नसरानी पादरी खड़ा था और वो शुहदा के सरों को देखता और जब हुसैन के सर को देखा तो अब उस नसरानी की नजर इमाम के चेहरे से नहीं हटती। बार बार ये कहता जाता है और रोता जाता है। और वो फिक्रा क्या है? वो नसरानी कहता है कि लग तो वो ही रहा है लेकिन खुदा करे वो ना हो। लग तो वही रहा है लेकिन खुदा करे वो ना हो। जब बार बार ये कह के रोने लगा तो उसके पास खड़े एक शख्स ने पूछा ये क्या बात करता है? कहा वो जो सर नेज़े पे देख रहे हो वो सर मुझे उस छोटे बच्चे की तरह ही लगता है जिसे मुसलमानों के नबी मोहम्मद ने अपनी गोद में बिठाकर मुबाहिले के मैदान में लेके आए। जब उस शख्स ने सुना, कहा तेरा अंदाजा सही है, ये हुसैन का सर है। कहा अच्छा ये हुसैन का सर है, फिर ये तो बता ये जो पीछे सरों के बेरिदा औरतें आ रही है ये कौन है? कहा ये उसी हुसैन के घर वाली है, कोई हुसैन की बहन है, कोई हुसैन की जोजा, कोई हुसैन की। बस जैसे ही ये सुना वो पादरी तड़पा और अपने मोहल्ले में गया और कहने लगा ऐ लोगों बड़ी मुसीबत आ गई, ऐ लोगों बड़ी मुसीबत हो गई। शाम के मुसलमानों ने अपने नबी के बेटे को कत्ल कर दिया और उनकी औरतों को कैद कर लिया। अब ये औरतें सारी उस पादरी की बात सुनने बाहर आई। कहा हुक्म क्या है? कहा क्या करती हो? उन औरतों के सरों पर रिदाएं नहीं है, जल्दी अपने घरों में जाओ और रिदाएं लेके आओ। अब नसरानी औरतें अपने घर गई, रिदाएं लेके बाजार में आई, ये अपने अपने दरीचों पे खड़ी हो गई और उन औरतों ने दरीचों से अहले हरम के खुले सरों पर चादरें फेंकनी शुरू कर दी। अभी यहाँ पे ज़ैनब के सर पर चादर आई, उम्मे कुलसूम के सर पर चादर आई। जैसे ही शिम्र ने यह मंजर देखा फौरन अपने पास खड़े मनून को कहा जल्दी मुझे अपना नेज़ा दे। कहा क्या मैं अमीर क्या बात है? कहा देखता नहीं अली की बेटियों के सरों पर चादर आ गई। नसरानी औरतें चादर डालती जाती, ये मलून नेज़े की अली से अली की बेटियों के सरों से चादर। बिलाखिर बाजार की मुसीबतों के बाद ये अहले हरम को दरबार ले आया गया। चौथे इमाम रिवायत करते हैं जब किसी शख्स ने पूछा मौला ये तो बताइए कि आपको दरबार कैसे ले जाया गया, तो मौला कहते हैं जब हमें दरबार ले जाया जा रहा था तो रास्ते में इतना इज्तिहाम था कि हमें हुक्म हुआ कि ऊँटों से उतर जाओ और हमें पैदल दरबार की तरफ ले जाया गया। देखने वालों ने देखा कि जब सज्जाद पैदल दरबार की तरफ चल रहे हैं तो सज्जाद की कमर इस हद तक झुकी हुई है कि ऐसे लगता मानो कोई शख्स हालत रुकू में चल रहा हो। जब इसका सबब पूछा मौला से तो मौला ने जवाब दिया कि जब मुझे दरबार ले जाया जा रहा था तो जो रस्सी मेरे हाथ में बंधी थी उस रस्सी में मेरे बेटे बाकर का गला बंधा था और मेरी बहन सकीना का गला बंधा था। वो रस्सी इतनी तंग थी कि अगर मैं अपनी पुश्त सीधी करता तो वो रस्सी इन दोनों बच्चों के गले को इस हद तक खींचती कि मेरे दोनों बच्चों का दम घुटने लगता।
अज़ादारों, अज़ादारों, 7 दरवाजे थे दरबार के, और रिवायतें कहती हैं कि दरबार जाने से पहले दरवाजे बाबुसाद पे अहले हरम को 3 दिन तक रुकाया गया। 15 अज़ाने अली की बेटी ने उस मुकाम पर खड़े होके सुनी है। जब पूछा इसका सबब क्या था मौला, तो कहा हमें इसलिए इतनी देर रुकवाया गया था क्योंकि दरबार की आईना बंदी हो रही थी। सवाल करो मुझसे, आईना बंदी क्या होती है? देखिए, यजीद का दरबार बहुत बड़ा था और इस मलून ने ये चाहा कि जो शख्स जहां बैठा हो उसकी नजर अहले हरम के खुले हुए सरों पर पड़े। तो इस मलून ने दरबार की छत पर जगह जगह आईने लगा दिए थे। अब जो भी मलून कुर्सी पर बैठ के अपने सर को उठाता तो उस आईने में अली की बेटियों के खुले सर को देखता। अभी आपने जाकिर से सुना कि शायर कहता है, कह दे कोई अली से ये दारुस्सलाम में ज़ैनब का दाखिला हुआ दरबारे आम में। आखिर शायर ने ये एहतमाम क्यों किया कि इस मुसीबत का पुरसा अली को दिया जाए? उसकी वजह यह है कि अली सबसे आगे अपनी बेटियों के पर्दे का एहतमाम किया करते थे। जब कूफे में मेरा मौला हाकिम था तो कोई भी अगर ज़ैनब से मिलना चाहता, कोई मस्तूर अगर अली की बेटी से मिलना चाहती, बराह रास्त मिल नहीं सकती थी। वो आती, पहले अपने इमाम से इजाजत लेती। अली कहते देखो मैं इसका इख्तियार नहीं रखता। वो आते, अपनी बेटी से इजाजत लेते, ज़ैनब ये और खातून तुमसे मिलना चाहती है। बीबी कहती बाबा आप तो साहिब इख्तियार है, आपको इजाजत है। जब अली उस खातून को ये पैगाम देने आते तो कहते देखो मेरी बेटी ज़ैनब ने इजाजत तो दे दी है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तुम लोग जब मेरी बेटी से मिलने जाना तो एक एक करके ज़ैनब से मिलना, सारी इकट्ठे नहीं जाना, इसलिए क्योंकि मेरी बेटी ज़ैनब को हुजूम से बड़ा डर लगता है। क्या सुन रहे हो अज़ादारों? जिस ज़ैनब को हुजूम से डर लगता है, आज वही ज़ैनब 700 कुर्सी नशीनों के दरमियान। मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। ना पढ़ा होता ना बयान कर रहा होता। कहते हैं 7 दरवाजे थे दरबार के, हर दरवाजे से अली की बेटी जब गुजरती तो सज्जाद अपनी फूफी को बार बार दिलासा देते। जब चौथा दरवाजा आया है तो सज्जाद ने देखा कि ज़ैनब के जिस्म में एक लर्जा तारी हो रहा है। कहा फूफी अम्मा ये लर्जे की वजह क्या है? कहा मेरे लाल मुझे दरबार के अंदर से मौसीकी की आवाज आ रही है। फिर ज़ैनब ने क़यामत का जुमला कहा, कोई खुदा किसी बेटे पर यह मंजर ना लाए कि आलम गुर्बत में उसकी नामूस उससे ये सवाल करे। जब ये कहा ज़ैनब ने कहा मेरे लाल सज्जाद इन शामियों से कह दे कि अगर कोई फटी पुरानी चादर भी हो मेरे लाल मुझे दे दे। अरे मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं, मेरा सर भरे ना और मैं दरबार में। सज्जाद बार बार अपनी फूफी को दिलासा देते। जब 7वां दरवाजा आया है और ज़ैनब को दरबार के मनाजिर दिखने शुरू हो गए तो एक मर्तबा अली की बेटी को चला लाया। कहा मेरे लाल मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरा सिर पर रिदा ना हो और मैं शराबी के दरबार में जाऊं। फिर बीवियों से मुतवज्जे होके कहा बीवियों मेरे सारे अतराफ जमा हो जाओ, मैं बस बद्दुआ करने लगी हूँ। जैसे ही ये लफ्ज़ बद्दुआ का ज़ैनब की ज़बान पर आ रहा था सैयद सज्जाद ने सर उठाया। कहा फूफी अम्मा एक बार जरा बाबा के सर को देखे। अब जो ज़ैनब ने हुसैन के सर को देखा, हुसैन की सर के हाथों से आंसू जा रहे। बहन हम भी दरबार में तुम्हारे साथ हैं। बस ज़ैनब वहां मुसीबता करके बैठ गई। जब बहुत देर हो गई तो शिमरे मलून आगे बढ़ा, सज्जाद की पुश्त पर ताजियाना मार के कहता है सुन हाकिम मुंतजर है, हमें दरबार में जाने देर हो रही है, कह अपनी फूफी को के दरबार में जाए।
सज्जाद तौखर जंजीर संभाले अपनी पुप्पी के पास आए, कहा पुप्पी अम्मा, नाना से किया हुआ वादा वफा करना है। कहा मेरे लाल, मैं दरबार में जाऊं तो जाऊं कैसे? इसलिए क्योंकि 21 रमजान की शब थी, मेरे बाबा का जख्मी सर मेरे कंधे पर था और मेरे बाबा ने मुझसे कहा था कि ज़ैनब, एक वक्त आएगा तेरे सर पर निदा नहीं होगी और तुझे शराबी के दरबार में जाना होगा। ए बेटा, तब मैंने अपने बाबा से कहा था, बाबा जा तो जाऊंगी दरबार में, लेकिन आप वादा कीजिएगा जब मैं बुलाऊंगी तब आप मेरी मदद को आएंगे। अभी ज़ैनब और सज्जाद में ये बातें हो रही थी कि सज्जाद ने देखा कि ज़ैनब एक मर्तबा खड़ी हुई, दोनों हाथों को अपने सर पर रखा और कहा, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। बाबा, आपने अपना वादा पूरा किया तो अब आपकी बेटी भी दरबार। या अली मदद कह के मेरी शहजादी शराबी के दरबार में दाखिल हो गई। रिवायतें कहती है कि जहां गुलामों को खड़ा किया जाता था, इस मलून ने उस जगह मेरी शहजादियों को खड़ा किया। अब आलम क्या है, एक एक जालिम आता है, अपने अपने साथ उसके मकतूल का सर लेके आता है। औनो मोहम्मद के सर आए, आफ्ताब जैसे सर। जब कासिम का सर आया, ऐसे लगता कि 14वीं का चांद है जो दरबार में आ गया। जब अली अकबर का सर आया तो देखा और लोगों ने कहा, यही है हम शबीह पैगंबर। जब अब्बास का सर आया तो यजीद ने सवाल किया, ऐ शिम्र, ये तो बता कि अब्बास का सर इन सरों से ज्यादा जख्मी क्यों है? शिम्र कहता है कि अमीर, अब्बास का सर वो वाहिद सर था जो नोके नेज़े की बुलंदी से बार बार गिर जाता, तो हमने अमीर अब्बास के सर को घोड़े की गर्दन में बांध दिया था और जब घोड़ा दौड़ाते तो घोड़ों की टापों से गाजी का सर जख्मी। सारे सर आए, एक मर्तबा दरबार का रंग मुख्तलिफ हो गया। क्या देखा दरबारियों ने कि हुरमुला एक ऐसा सर लेके आया है ऐसे लगता कि कोई फूल सा सर। जैसे ही असगर के सर को यजीद ने देखा, कहा, है जालिम, इस बच्चे का क्या कसूर था? कहा, अमीर, तुम नहीं जानते, लेकिन ये बच्चा वो था जो करबला में तेरी फौजों का रंग तब्दील कर रहा था। बस मैंने अपने शेषों में तीर से इस बच्चे को खता कर दिया। सारे शुहदा के सर तो आए, हुसैन का सर नहीं आया। अब शहजादी ज़ैनब की निगाहें अपने भाई के सर को ढूंढ रही है। इतने में ज़ैनब ने क्या देखा कि यजीद के सामने एक तश्ते तिला लाया गया जिस पर सरपोश ढका हुआ है। अब ये मलून उस ऐसे ही सरपोश को हटाया। ज़ैनब ने देखा कि हुसैन का सर यजीद के सामने एक तश्त में। माफ करना आज़ादारो, ना ये जुल्म होता ना मैं पढ़ता। अब ये मलून ने क्या जसारत की कि इसने अपने तख्त के पीछे से एक छड़ी निकाली, उस छड़ी को हुसैन के होठों पर रखेगा। यही वो होठ थे जिस पे रसूल बोसा किए क्या करते। अब ये मलून करता क्या है? ये मलून छड़ी मार के करता है। ये बदला का बदला, ये होठ का बदला। फिर हुआ क्या? शीरे ज़हरा के मोती फना में बिखर। अज़ादारो, मर जाना, जुमला बर्दाश्त न करना। इतना जुल्म करने के बाद भी जालिम को चैन न आया। ये मलून बीवियों की तरफ अपना हाथ का इशारा करके कहता है, ऐ शिम्र, मुझे ये बता कि इन कैदियों में से अली की बेटी कौन है? कहा, अमीर, वो जो बीवियों में सबसे पीछे एक ज़ईफ़ा तुझे नजर आ रही है, उसकी कमर के पीछे जो बीवी पर्दा कर रही है वो अली की बेटी ज़ैनब है। कहा, ऐ शिम्र, इस ज़ईफ़ा को हटा, मैं अली की बेटी से कलाम करना चाहता हूं।
अब ये मलून हाथ में ताजियाना लिए आया और कहा फिजा पर्दा छोड़ दे, कहा मर जाऊंगी पर्दा नहीं छोड़ूंगी। इधर ज़ैनब ने कहा अम्मा फिजा पर्दा छोड़ दीजिए, कहा या तो माना कहे या पर्दा छोड़ने का ना कहे। जैसे ही ये सुना शिमर ने ताजियाना बुलंद किया, बस ताजियाने का बुलंद होना था। फिजा ने सर को उठाया, कहा क्या तुम दरबारियों में कोई हबश का रहने वाला नहीं? एक बूढ़ा हबशी उठा, फिजा के पास आया, कहा ऐ कैदर तू कौन है और तूने मेरे कबीले को क्यों याद किया? कहा तेरी शहजादी का नाम क्या है? कहा ऐ कैदर अगर तू कैद में ना होती तो मैं तेरा सर तन से जुदा कर देता। तुझे नहीं मालूम दरबार आम है, नामहरमों का मजमा है, शहजादियों के नाम दरबारों में नहीं लिए जाते। कहा मैं बताती हूँ, तेरी शहजादी का नाम मैमूना है, वो मदीने में सैयदा के घर की नौकरी करती है। बस कहा अगर देखेगा शहजादी को पहचान लेगा। कहा हाँ। अब जो फिजा ने चेहरे से बालों को हटाया, कहा पहचान। बस वो हबशी ने देखा, लरज गया, अपने जवानों को इशारा किया। इतने में हुआ क्या, 300 हबशी जवान यजीद को घेरे में लेके अपनी तलवारें बुलंद करके कहते हैं ऐ यजीद क्या तूने हबश की बेटियों को अली की बेटियों की तरह लावारिस समझा? बस जैसे ही ये सुना ज़ैनब का दिल भर आया। अब्बास के सर को नजर, अब्बास कलीलों के वारिस को तेरी ज़ैनब का कोई बात। गाड़ी जो है सो गलत पार्किंग किए हुए हैं, वहाँ टिकट लग रहा है, प्लीज जाके अपनी गाड़ी को जो है सो सही करता ले। वावेला हुसैन 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 वावेला हुसैन
बार में लाया
जाने लैला से ये मंजर किस तरह देखा गया, जाने लैला से ये मंजर किस तरह देखा गया, जाने लैला से ये मंजर किस तरह देखा गया, जाने लैला से मंजर किस तरह देखा गया, कैसी गुर्बत में शबी है अहमद मुख्तार है, मेरे साजना कभी है शाम का दरबार है, मेरे साजना कभी है शाम का दरबार है, वो वली असगर का सर जैसे कोई ताजा कली, वो वली असगर का सर जैसे कोई ताजा कली, मादरे बेशीर की जिस दम नजर उस पर पड़ी, गोद में लेकर सुनाने की तमन्ना जाग उठी, 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 हाथ रस्सी में बंधे हैं माँ बहुत लाचार है, मेरे साजना कभी है शाम का दरबार है, मेरे साजना कभी है शाम का दरबार है, हर घड़ी नजरों के आगे एक कयामत है नहीं, सर पे भाई के बहन की है नजर ठहरी हुई, होठ वो शबीर दस्ते जालिम में छड़ी, होठ वो शबीर के और दस्ते जालिम में छड़ी, होठ वो शबीर के दस्ते जालिम में छड़ी, होठ वो शबीर के और दस्ते जालिम में छड़ी, ये बहन के दिल पे एक चलती हुई तलवार है, मेरे साजना कभी है शाम का दरबार, या हुसैन 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 दरबार में गई थी कारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी, जालिम ये पूछता था बाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुंह छुपाए नब ये कह रही थी,
ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। मजमाए आम में बेवतन बेअमान आ गया कारवां। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। मैं भी हूँ मर्ज़िया बिन्ते खैरुन्निसा, मेरे लहजे में है बाबा तेरी अदा। नाम ज़ैनब मेरा तूने जो रख दिया, दे दे अपनी ज़ुबान। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। बाबा जान मेरी जान मांगती रह गई, दामोदरी सज गए, जीते जी मर गई। हल्का शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया नातावान। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। मजमाए आम में बेवतन बेअमान आ गया कारवां। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। हाथ कानों पे है, नील गालों पे है, और निशान जो सकीना के शानों पे है। हर निशान से यही आ रही है सदा, बाबा जान बाबा जान। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ। ऐ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर छुपाऊं कहाँ।
मौकूफा तलक मैंने जे पसक मेरी चादर से है मेरी माँ का सुकून सुन ले जालिम जहां हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ मजमाए आम में बेवतन बेअमा गया साजगान मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ बाबा जान ये तेरा आखिरी था बना तेरी चादर बताएगा जी जवां मर गया बाबा छिन गई है रिया कहती है बीबी नो के नैज़ा से आने लगा खाक पे बहने को दिल बदे देखे के नंगे से सहना पाया जवान मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ मजमाए आम में बेवतन बेअमा आ गया कारवां है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर छुपाऊं कहाँ ऐसा खुतबा दिया मैंने तेरे बारे में लिख रहा है जो यार तेरे प्यार में लह जाए है दिली हर अज़ां के लिए है सदाए अज़ां बाबा जान हो रही है अज़ां सर छुपाऊं कहाँ में मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा है फला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा है फला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा यूसुफ़े नबी खुद असीर जिंदा यूसुफ़े आल नबी खुद असीर जिंदा है सजाद कुजा शौक़े गुलूगीर कुजा है भला कष्ट कुजा और सर शबीर कुजा है भला कष्ट कुजा और सर शबीर कुजा बस मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा फला कष्ट कुजा सर शबीर कुजा बस मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा फला कष्ट कुजा और सर शबीर कुजा फला कष्ट कुजा और सर शबीर कुजा बस मैं खार कुजा ज़ैनब दिलगीर कुजा
जा खूब सैराब नमो चंद्रलई असगरा खूब सैराब नमो चंद्रलई असगरा तीरे फौजात कुजा गर्दन पे तीर कुजा कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फलक तश्त कुजा सर शबीर कुजा फलक तश्त कुजा सर शबीर कुजा मज़र में खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा बस्ताए ज़ुल्म शुदा नाद हुसैन इब्ने अली बस्ताए ज़ुल्म शुदा नाद हुसैन इब्ने अली रसने तंग कुजा दुख्तर शब्बीर कुजा फलक तश्त कुजा सर शबीर कुजा फलक तश्त कुजा सर शबीर कुजा बज़्म में खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फलक तश्त कुजा सर शब्बीर कुजा बज़्म में खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा फलक तश्त कुजा सर शबीर कुजा फलक तश्त कुजा सर शबीर कुजा बज़्म में खार कुजा ज़ैनब दिल की कुजा दुख्तरे उख्रा कुशाए तो जहां गश्ता से दुख्तरे उख्रा कुशाए तो जहां गश्ता से मजलिसे शाम कुजा साहिब तत्हीर कुजा ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا شهيد كربلاء ابن الزهراء وويلا يا طاري انتصارا ابن الزهراء وويلا يا صالبا من ريدان ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا ابن الزهراء وويلا अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह अस्सलाम वालेकुम रसूलुल्लाह अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन अस्सलाम वालेकुम सय्यदत निसाइल आलमीन अस्सलाम वालेकुम या सादाती व वली जबरकल बरकातुह अस्सलाम वालेकुम रसूल अब्बास इमाम मोमिनीन वक्ति गज़ैन व उम्म कुलसूम बिन्त सकीना या साइर शुहदा करबला जमीन रहमतुल्लाह बरकातुह अस्सलाम वालेकुम या गरीब अलगरबा अस्सलाम वालेकुम या मुइन अद्दुफा वल फुकरा सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मुस्लिम रज़ा कुन शफीउना शफी वालिदैना फी यौमिल जज़ा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह अस्सलाम वालेकुम या साहिब ज़मान अस्सलाम वालेकुम या शरीक अल कुरान अस्सलाम वालेकुम या इमाम अल इंस वल जान अलमान 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 मिन फितनतिज़ ज़मान अजल अल्लाह ताला फरजक अल्लाह ताला मखरजक ज़हूर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुह।